Okay, now it is recording, guys. Okay. Okay. So my mark was 574. Okay. So how many days I prepared? Only 1.5 months. 1 month, 15 days only I prepared. I came in summer holidays at the home, and I just prepared for 1.5 months. I read almost like whole day. Okay, up to 6 or 7 p.m. I used to read. Up to 5 p.m. I used to read, and 1 hour I used to practice the MCQs. That's all I practiced at that time. My mark was 574 out of 650. But my rank was, it was around 337. Okay, means not qualified. See, my mark was higher. Still, I am not qualified. At that time, the highest was 545. This was the mark highest, first rank. And you can see, means up to that, my where am I? Sorry, 645. Sorry. Understood. But in the 4th year, I prepared for like 6 months. I got 474 mark out of 650. My rank was 73, All India rank, category 39. I got selected. So can you tell me why is that different? I got higher marks, still I did not got selected, and I got less mark and I got selected. Can anyone tell me the strategy why it has happened? Hello, please respond to me, otherwise it will be a waste. I'm talking to like myself only. कोई बोलिएगा? Hello. Hello. Hello, sir. Yes, please respond. Are you not able to hear me? Yeah, I mean, you are hearing, sir. Okay, so I'm asking something. Why is that different? Why I got different things? Okay, no problem. I will tell now. Okay, so what is happening? See, when I in 2018, that time the paper level was very easy. Okay, in 2019 the paper level was medium. Okay, medium to tough because there. Okay, so it depends upon the paper you give. Okay, and the highest mark in that paper, अगर किसी का हाईएस्ट मार्क आया तो उसको लेके आपका डिसाइड होगा कि रैंक आपका कितने जाएगा. ओके, तो ये मान के चलो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. रैंक आए या मार्क आए उसको आप कोई भी ध्यान नहीं देना है, पर आपको एक सेट करना है कि मेरा रैंक कितना होगा. Like I have fixed that I'll be staying within 30. Okay, so you have to make a fix in your mind that मेरा rank उस एग्जाम में कितना होगा. फॉर एग्जाम्पल आप कैन फिक्स लाइक इफ यू आर रीडिंग गुड 10 you can fix. Okay, and you have to prepare like this, that if I'll be get a 10 rank in the exam, then my preparation should be like this. इस तरह का आपको प्रिपेयर करना है, and your strategy must be like that according to me. Okay, आप आपका खुद का भी मतलब स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है मोनिका, या चले गए सब? 6 पास मुझे मिला के 6 पार्टिसिपेंट है. Yes, sir. मोनिका समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if you are preparing and with the wrong books, and my suggestion is, but you please don't go for objective books first. Okay, read some conceptual books. Okay, for example, ready you must read each line, and I have made the MCQs from ready chapter wise, so that will help you with the current pattern: reasoning statement, direct question, line question, a statement type question. I have prepared that. Okay, that will help you.
One more book for soil science you can prefer, like a textbook of soil science by S.K. Mukherjee and T.D. Viswas. That small book you have to read. Have you, anyone is reading that book? Hello? Anyone is preferring that book? या किसी के पास ऑलरेडी मतलब है एटलीस्ट देखने के लिए एटलीस्ट वो किसी के पास नहीं? वो बुक आपको खरीदना है। ओके, बहुत अच्छा बुक है, स्मॉल वाला बुक है। अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो 85% आपका कवर हो जाता है उस पे। ओके, और ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, अभी आपको मतलब लिमिटेड पढ़ना है। लाइक रेडी रेडी पढ़ लिया और एसके मुखर्जी पढ़ लिया, और एक अगर आप चाहे तो स्पेसिफिक आप इरिगेशन एग्रोनॉमी पढ़ सकते हैं बाय एस.आर. रेड्डी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको टाइम नहीं है देन रेड्डी रेड्डी, एसके मुखर्जी पढ़िए, और इन दोनों को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, आपका रैंक लग जाएगा। ज्यादा पढ़ने से क्या होता है कि कंफ्यूजन आ जाता है दिमाग में। मैंने अभी तक बहुत ही बुक्स पढ़े और बहुत ही न्यू कंसेप्ट पाए, मतलब ऐसे नहीं कि न्यू कंसेप्ट नहीं पाए, पर वेस्ट। एग्जाम में क्या आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। ये सर नो गाइस, आप कोई दिया है अभी तक, मतलब जो भी अभी 4th ईयर में, वो पिछले साल का क्वेश्चन देखे आपने? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन कैसा है, बेसिक है कि नहीं? Yes, sir. पूरा का पूरा मतलब जो बुक्स में लिखा गया लाइन वो भी छाप लेते हैं वहां पे। ओके, कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें। इसलिए आपको कम पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट हम समझा लेंगे। ओके, जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा लेंगे, बहुत इजी तरह से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एग्रोनॉमी एक फनी सब्जेक्ट है, उसको हम फन तरीके से आपको समझाएंगे। और मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसलिए आपको मतलब इंग्लिश थोड़ा अच्छा है पर हिंदी बहुत ही कमजोर है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी। आर यू गेटिंग गाइस? हेलो, सब सो गए? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If all of you will be in Telugu, then I will be speaking in Telugu. But you are all of mix. Like one is from Rajasthan, Andhra, Telangana, Karnataka. Okay. So you know this is what our diversification. Okay. मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लेके आए सुबह उठ के। और आई थिंक आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स यू आर, आई थिंक मुझे मिला के कितना है 6, तो 5 स्टूडेंट्स इज वेरी सीरियस अबाउट द क्लास। ऐसे होता, मैं जब शुरू किया था 2020 में, एक मतलब हाँ 2020 में मैं एक शुरू किया था सेशन। ओके, मेरे ज्वाइन हुए थे 50 अराउंड। ओके, क्लास में कितने थे, 5। you know means that seriousness must come from you, that I am preparing for something. okay, so introduction हो गया, तो अभी शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। okay, याद नहीं रहा, नहीं हो गया। तो मेरा मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना अभी? No, sir. ओके, अभी दिख रहा है? Yes, sir. okay. अभी दिख रहा है, वाटर मैनेजमेंट लिख रहा है ना यहाँ पे? Yes, sir. ओके, तो इसको हम, ये भी दिख रहा है क्या, आपका नाम वगैरह दिख रहा है?
No, sir. ओके, तो देखिए वाटर मैनेजमेंट मतलब होता क्या है, उसमें क्या है, मेनली फोकस करना है कि वाटर मैनेजमेंट मतलब क्या है। ओके, तो जो पानी है ना, पानी और मिट्टी का जो एक रिलेशनशिप है, मतलब चाहे लव स्टोरी गर्ल एंड बॉय ही समझ लो। ओके, तो हमारा जो मिट्टी है वो गर्ल है, जो पानी है वो बॉयज ही है। ओके, तो उनका बीच में एक रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रिलेशनशिप है। Okay, तो हमको जो पानी है, जो वाटर है, उसका जो प्रोडक्टिविटी उसको हम इम्प्रूव करना है और उसको कंजर्व करना है, क्योंकि पानी जो है ना बहुत ही कम मिलता है अभी, ये सब नो। अभी तो जो भी नदियां हैं वो तो सूखी जा रही, तो पानी को हमको कंजर्व करना है और उसको, उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ाना है। इसलिए अभी क्या आ रहा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम आ रहा है, ये सर नो। तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट में हम क्या फोकस करेंगे कि हम वाटर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, लाइक वाटर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे, कम पानी में कैसे हम ज्यादा पैदावार करेंगे, उसको हम फोकस करना है। एंड वी हैव टू कंजर्व द वाटर, एट द सेम टाइम वी हैव टू कंजर्व द वाटर, सो दैट हम क्या करते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं, कंजर्वेटिव यूज ऑफ वाटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होता है कि वाटर कंजर्व हो रहा है और वाटर का जो प्रोडक्टिव है वो बढ़ रहा है। ओके, तो इसके अंडर दो टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, वन इज इरिगेशन, वन मोर इज ड्रेनेज। इरिगेशन का मतलब क्या है कि पानी देना, क्यों देना है, पानी क्यों देना है खेत में, टू इम्प्रूव द growth and development of the crop and to supplement the irrigation at the proper time. For example, एक क्रॉप का ड्यूरेशन होता है 120 डेज, ऐसा नो, तो उसको पानी चाहिए, जैसे कि हमको ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुबह से उठ के हम पानी पीते हैं, रात तक पीते हैं सोने तक, ऐसा नो। अगर पानी नहीं पियेंगे तो पूरा सिस्टम डैमेज, कोलैप्स्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो पौधा भी है उसको सिस्टम को बनाए रखने के लिए उसको भी इरिगेशन चाहिए, मतलब पानी उसको चाहिए। तो इन विच मेथड और आर्टिफिशियली अगर हम दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन, और नेचुरल तो आ रही है, बारिश हो रहा है तो वहां से पानी आता ही आता है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, देन आता है एक ड्रेनेज बोल के एक टर्म है, वो भी आता है, इसको हम क्यों इंक्लूड करें। फॉर एग्जाम्पल एक खेत है, वहां पे हम ज्यादा पानी दे दिए किसी कारण, क्योंकि फार्मर जो है वो मूर्ख है या एजुकेटेड है या कोई भी है, मिस्टेक हर एक से होता है, यस और नो। तो किसी दौरान किसी कारण पानी बहुत ज्यादा चलेगा फील्ड में, तो क्या होगा, वहां पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन आएगा, यस और नो, वहां पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन आएगा। इस ज्यादा जो पानी वहां पे जम गया है तो उसको हम निकालना पड़े, नहीं तो क्या होगा, क्रॉप फेल्यूर भी होगा, यस और नो। तो क्रॉप फेल्यूर को रोकने के लिए उस पानी को हमको निकालना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, उसको हम बोलते हैं, सो बाय एनी मींस वी हैव टू रिमूव दैट वाटर। अंडरस्टूड, तो उसको हम बोलेंगे ड्रेनेज। पर ड्रेनेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा जो एक्सेस वाटर है उसको हम रिमूव करेंगे, वहां पे जो सॉल्ट्स भी है, एक्सेस सॉल्ट्स, ओके, उसको भी हमको रिमूव करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज दैट विल आल्सो हिंडर द क्रॉप ग्रोथ। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जो भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, पॉन्डिंग करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, पॉन्डिंग करते हैं, ये एक मेथड है जहां से सॉल्युबल सॉल्ट्स है वो रिमूव हो जाते हैं। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यूट्यूब में है, यू कैन विजिट एंड सी। ओके, सेलेन सॉल्ट, अल्कली सॉल्ट एंड एसिड सॉल्ट, उसके तीनों के ऊपर हम वीडियो बनाए, यू कैन सी दैट सेपरेट वीडियो। और अगले जो हमारा आएगा प्रॉब्लम सॉइल्स, वहां पे भी हम इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट क्या है, टू इम्प्रूव द वाटर प्रोडक्टिविटी, टू कंजर्व वाटर। वहां पे दो टर्म्स आ रहे हैं, वन इज इरिगेशन, वन वाज ड्रेनेज। इरिगेशन मतलब क्या है, हमको पानी देना है, क्यों देना है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप के लिए। और ड्रेनेज, अगर ज्यादा पानी दे दिए तो उसको हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर
नहीं निकालेंगे तो वाटर लॉगिंग कंडीशन होगा, वहां पे सॉल्ट डिपॉजिट होगा और क्रॉप जो है वो फेल्यूर होगा। इसके लिए हमको वहां से निकालना पड़ेगा पानी को। समझे? आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? 3 सोर्स है हमारा। वन इज सरफेस वाटर, जो हमारा नदियां है, पॉन्ड है, ओके, बहुत तरह का जो सोर्सेस है वहां से आ रहा है हमारा पानी। सब सरफेस वाटर मतलब ग्राउंड वाटर से भी पानी आ रहा है हमारा। सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर, वो भी पानी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो मेजर है वो हमारा रेनफॉल है। ठीक है, हमारा जो इंडिया का जो एवरेज रेनफॉल है कितना है? 1190। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बहुत बार। 1190 हो गया, 1194 mm भी बहुत बार ये दिया गया है। तो हमारा जो रेनफॉल है मेनली साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ज्यादा पानी आता है, लाइक 70% अराउंड साउथ वेस्ट मानसून से आता है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वहां से तकरीबन 25% मान लो, ओके, पर ये दिखा नहीं जाता है अभी, ओके। तो मेजरली हमारा 70 to 75% वो जो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून से आ रहा है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून कौन से महीने से शुरू होता है, कोई बोलेगा? कैन एनीवन टेल दैट्स व्हेन? जून। जून। और कोई? एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर? फर्स्ट जून। 1 जून। ठीक है, तो 1 जून जो है वहां से शुरू होता है, वो केरला से शुरू होता है, ऐसा नो? केरला में पहले शुरू होता है, केरला से आके वो हमारा जो हिल्स है यहाँ पे, ओके, ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक चले जाते हैं अरब में, एक चले जाते हैं बंगाल में, ओके। यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट है, ऐसा नो? तो वेस्टर्न घाट में जब एयर फ्लो होता है तो वो डिवाइड हो जाता है ऐसे। ऐसे गया, केरला से आया, लगा, हिट हुआ एंड इट विल बी सेपरेट अगेन। हिमालय है ऊपर, हिमालय ऐसे जाएगा, राजस्थान को एक जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में जब पहुंचता है वो पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। ये सर ना मोनिका, आपके वहां पे मानसून पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, इसलिए आपको गाली करना चाहिए मानसून को। ठीक है, अच्छे से गाली करना ताकि वो जल्दी आ जाए आपके पास और बहुत अच्छे से आए। ठीक है, छोड़ना नहीं है मानसून को, पकड़ के रखना है। ठीक है, समझे? तो मानसून के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेट्रोलॉजी के पार्ट में। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको मानसून का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अभी इतने आगे बढ़ते हैं। तो इरिगेशन हिस्ट्री से भी बहुत बार क्वेश्चन आता ही है, ओके। तो इरिगेशन हिस्ट्री से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर ओनली, सॉरी दिस ईयर व्हेन आई वाज राइटिंग एग्रोनॉमी नेट, एएसआरबी नेट, सो एक क्वेश्चन आया था, ओके। पहला ही, ये जो पहला लाइन देख रहे हो आप, यही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया था। आई वाज कंफ्यूज्ड, आई रेड, आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज वो जो टेंशन होता है ना एग्जाम का, अगर उसको आप हैंडल कर लिए बहुत अच्छे से, देन यू आर द वॉरियर। समझे? आर यू गेटिंग मी? हेलो, कोई है? यस सर। ओके, मुझे तो लग रहा है सब सो रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं आपसे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो ग्रैंड अनेकट है जिसका नाम दिया कलानाई, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी, is an outstanding example for the irrigation work by Chola king, the great Karikala Chola during 2nd century। क्वेश्चन कैसे आता है कि छोला किंग के दौरान कौन सा रिवर में ग्रैंड अनिकट बना था? कावेरी में ग्रैंड अनिकट बना था। कौन सा रिवर पूछा जाता है? या ग्रैंड अनिकट कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी ड्यूरिंग विच, लाइक कौन से किंग थे वहां पे ऐसे उस टाइम, उस दौरान। तो वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि ग्रैंड अनिकट, कावेरी डिस्ट्रिक्ट, छोला किंग, ये तीनों आपको याद रखना है। ग्रैंड अनिकट,
कावेरी डिस्ट्रिक्ट छोला किंग, समझे। और जो है बाकी सारे ये सब माइनर से, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, पहला लाइन। और बाकी देखे तो अर्ली मौर्यन किंग जो है हमारा जो समुद्रगुप्त है और अशोका जी थे, वो क्या थे, बहुत इंटरेस्ट लेते कि वेल्स एंड टैंक्स के लिए। तो आपको पूछा जाएंगे सवाल, वेल्स एंड टैंक्स कौन से किंग के टाइम में वो शुरू हुआ था, समुद्रगुप्त एंड अशोका, ये दोनों आपको याद रखना है। देन हमारा आ जाता है तो अपर गंगा कैनाल, कृष्णा गोदावरी डेल्टा सिस्टम, मैत्तूर एंड पेरियार डैम जो कि केरला में है, पेरियार डैम, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। पेरियार डैम कहाँ पे है, केरला में है, ओके, बहुत बार पूछा गया सवाल है। आर द ग्रेट इरिगेशन स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स, ओके, ब्रिटिश रूलर्स जब आए ना वहाँ मतलब बहुत अच्छे डैम बनाए वो भी, ठीक है। मतलब इरिगेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ रहा वहां पे, ओके। हमारे जो किंग्स थे वो भी मतलब बहुत अच्छे बने, जब ब्रिटिश रूलर आए ना बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बने वो सारे का सारा, ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आफ्टर 1947 irrigation activities have been accelerated and number of multi-purpose river valleys projects like Wakranangal in Punjab. Why I have given this? Because they have asked in the exams. Wakranangal कहाँ पे, पंजाब में या हरियाणा में, ऐसे पूछ लेते हैं। तुंगभद्रा जो है वो कहाँ पे, दामोदर वैली कहाँ पे, ओके। जो दामोदर है वो हमारा कोलकाता में भी पाया जाता है, ये सर नो। तो इस ये नो मतलब वाटर सिस्टम को भी आप बहुत अच्छे से याद रखने, लाइक रिवर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए, या हमारा जो वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब ऑल एक और डिपार्टमेंट है उसका भी आप थोड़ा पढ़ना ही है। मतलब रिवर कहाँ पे है, डैम कहाँ पे है, और जो वाटर सेट प्रोजेक्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, क्योंकि इस बार हमारा जो नेट एग्जाम थे वो पूछ लिया था कि सुखमंजरी वाटर सेट कहाँ पे है, ओके। हमने तो पढ़ लिया था इसलिए हम कर दिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वो सारे भी पढ़ना ही है, ठीक है। और ये सारे हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिए कि अर्ली मायो टेन्योर के टाइम किया हुआ था, लाइक न्यू इरिगेशन कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन अलीगढ़, ओके। अलीगढ़ में न्यू इरिगेशन कैनल शुरू हुआ था मेयो टेन्योर के टाइम। शारदा कैनल हुआ था यूपी में। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस कंपल्सरी वाटर चार्ज कलेक्शन, ये लाइन पूछा जाता है। हमारा जो मतलब किस्ती होता है, मतलब अगर पानी आप यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, चार्ज, वाटर चार्ज देना पड़ता है। वो मतलब कौन इंट्रोड्यूस किया था, अर्ली मायो टेन्योर के टाइम ये हुआ था। देन आ जाते हैं हमारा लॉर्ड कर्जन टेन्योर जो कि 1901 to 1903, वो क्या क्या थे, इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट इरिगेशन कमीशन जो कि हमारा 1901 में प्रपोजल हुआ था और 1903 में पास हुआ था। ये आपको पता है कि नहीं, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, हेलो। Yes, sir. सेकंड इरिगेशन कमीशन कब हुआ था बताएंगे आप? 1969, sir. 1969, very good. And it was passed in 1971, yes or no? Very good, I think you are reading, अच्छा लगा सुन के। और 1905 के बाद में क्या हुआ ना, ट्रिपल कैनाल प्रोजेक्ट हुआ इंडिया में। अपर झेलम हुआ, अपर बारीबोड़ा हुआ, अपर छेना हुआ, एंड जुडिशियस ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर वाज स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। देन सार गंगास राम कंट्रीब्यूशन, ये हमारा है जो कि कुछ कंट्रीब्यूट किए थे। उनके दौरान क्या हुआ था, रेनाल इरिगेशन स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था। वो लिफ्ट इरिगेशन और वाटर सेट को भी वो बहुत ही प्राधान्य दिए थे, ठीक है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो कि 1969 एंड 74 के दौरान हमारा तो पता है सेकंड इरिगेशन कमीशन हुआ था। और डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर और साइलेंट एंड अल्कालाइन प्रॉब्लम वर नोटिस्ड फर्स्ट, ओके। हमारा इंडिया का वाटर बजट देख लेते हैं एक बार। हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है बताएंगे थोड़ा, टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है हमारा, हेलो, कोई है बताएगा? हेलो भवानी जी बताइए। Sir, कोई चार्ट 329. 329 million 8.8 hectares. एग्जैक्टली, यस और नो? Yes, sir.
ओके तो 329 अराउंड होता है। ओके तो बहुत सारे बुक में 328 दिया है, तो यहाँ पे हम 328 ही लिखा है, इसके हिसाब से ही हुआ है वाटर बजट। ओके कोई चार्ट में दिया है कुछ, पढ़ लेते हैं एक बार। टीच इन इंग्लिश। ओके ओके आई थिंक निरूपा डी, आपका थोड़ा परिचय बताएंगे? Sir, I can't understand English, Hindi. हिंदी। ओके सो वेयर आर यू फ्रॉम? Bangalore, sir. बैंगलोर। Yeah. आरम्मा? Sir. ಆರಮ್ಮ? Aram, sir. ఆరమ్మ సరే నేను ఇంగ్లీష్ లో ట్రై చేస్తాను. ఓకే Okay, sir. ఓకే సో our total geographical area is 328 million hectare. ठीक है, and what is our average annual rainfall? 1190. Yes or no? So if we'll calculate in million hectometers, and then we have to multiply these two. Okay, so 1119 into 328, so we'll get around 392 million hectare meter. This is the most important question they used to ask. Understood कि पानी एक्चुअल में कितना है? जब हमारा जो स्नोफॉल से आ जाता है 8 मिलियन हेक्टोमीटर जो आता है, तो हमारा टोटल वाटर कितना हो जाता है कि 400 मिलियन हेक्टोमीटर. ओके तो आपको दोनों याद रखना है, ये वाला याद रखना है एंड ये वाला भी याद रखना है. अगर आपको सिर्फ वाटर का पूछे तो 392 पूछेंगे, टोटल पूछेंगे तो आपको 400 मिलियन हेक्टर आंसर देना है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. और हमारा अगर मतलब किसको आधार करके हमारा वाटर बजटिंग क्या है, हमने थोड़ा बता देंगे अभी. अगर बिलो 2.5 mm हुआ, इफ द रेनफॉल विल बी बिलो 2.5 mm, means see about 2.5 mm is a rainy day. Yes or no? Yes or no guys? Yes, sir. Okay, so what is the agricultural rainy day? Can anyone tell me what is the value of agricultural rainy day? 5 mm. Hi, sir. sir. Yeah, more than 5 mm को हम we used to call agricultural rainy day. ठीक है, on an average there are 130 rainy days. Yes or no? 130 to 135 rainy days are there, and out of that 75% is coming from our effective rain. Okay, means 75 days considered to be very effective, so rest 55 is non-effective, means they just occurred and they just to get direct evaporation. Understood? So if we'll simplify this, you can see I have given a chart. 400 million hectometer. Okay, out of that 215 million hectare will be infiltrated into the soil, which will be utilized by the plant, and 70 million hectometer will be directly evaporate, and 115 million hectare will be run off in the surface. Means ये तो मतलब हमको यूज ही नहीं होगा. Okay, it will not be used. Out of that 215 million hectometer, 165 million hectometer will be contribute to the soil moisture, which will be directly utilized by the soil, and 50 million hectometer will be go and reside in the groundwater. And out of this 115 million hectometer, 105 from rainfall and 10 from snowfall. Okay, this will be no use. This part 215 million hectometer will be our utilized, and out of that only 165 million hectare will be soil moisture, जो कि I will ask the question in the exam, and 50 million hectometer will be the groundwater recharge. उसके बाद बहुत सारे सोर्सेस से आते हैं, अगर आप कोई बुक्स देखें तो बहुत सारे मतलब अदर सोर्सेस आल्सो दे यूज्ड टू ऐड ऑन. ओके, जो कि जरूरत नहीं है, दैट इज नो नीड. इन द एग्जाम दे यूज्ड टू आस्क दिस, दे यूज्ड टू आस्क दिस एंड दिस. ओके, ये वाला और ये वाला पूछ लेते हैं. एंड समटाइम दे यूज्ड टू आस्क व्हाट इज द सॉइल मॉइस्चर कंट्रीब्यूट and what is the groundwater recharge. Understood? So these 5 or 6 questions you have to ask from this part. You no need to worry and remember all the complex values. You have to remember these 5 or 6 values. Can you remember these 5 or 6 values or not?